السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ میرا نام ہے رحمان انور، میں ہوں محمد شریم، میں ہوں ظفر اقبال، اور آج ہم جس ویڈیو پر ریئیکٹ کرنے جا رہے ہیں، اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے دی ریئل کشمیر فائل آف ہندوز ان شارٹ۔ تو چلو سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو چلو ویڈیو کرتے ہیں شروع۔ Last year, Kashmir had a population of 1,40,000 Hindus. In the last 6 months, more than 1 lakh Hindus have fled their homes, many with just their clothes on their backs. Several pockets of Hindu population like Habba Kadal, Renawari and Karan Nagar have become ghost towns. There were numerous pressures that forced these Hindus to leave. Children had no schools to go to. Colleges were closed. Weeks of curfew had converted homes into prisons, often without electricity, water and food. But most of all, it was the tension of being a minority in an increasingly fanatical atmosphere, where the very air they breathed was laden with violence and fear. They have left secure jobs, sometimes of 20 years, established businesses running for generations, and even properties and orchards to a blank, uncertain future with marginal help from the government. Why, they ask, should we be refugees in our own country? ہم ڈر گئے ان لوگوں سے، پھر ہم نے سب سامان اٹھا کر یہاں آئے ہیں۔ Suddenly, her mother, who was sitting next to her, began to weep. دکھی اس لیے ہے کہ اس کی 3 بیٹیاں ہیں، بڑی بیٹیاں ہیں، میں بھی اس کی ایک بیٹی ہوں۔ یہ اس لیے روتی ہے، ہم کیا کریں گے؟ Less than 3 years ago, these people led normal, average lives in Kashmir. In the last 6 months, that normal world is now sadly part of their good old days nostalgia. تمہیں لگتا ہے کہ واپس جاؤ گی تم کبھی وہاں پہ؟ ہاں۔ من کرتا ہے واپس جانے کا؟ کیا کہتے ہیں ممی پاپا، کیا کہتے ہیں کہ واپس جا پاؤ گی وہاں پہ؟ نہیں۔ کیا کہتے ہیں کبھی نہیں جائیں گے وہاں؟ تو پھر کیا کہتے ہیں کہاں رہیں گے؟ یہی تو یہاں کیا کریں گے؟ پتہ نہیں۔ Large-scale migration began when the release of Rubia in exchange for 5 militants led to mass hysteria in most parts of the valley. The next phase came in the 3rd week of January when huge processions were taken out in the valley, processions in which many Hindus were forced to march in front. ہم مجبور تھے، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ان کے نعرے تھے کہ اگر آپ بھی نکلیں گے ہم آپ کو ماریں گے۔ یہ ان کے کیا نعرے لگائے آپ نے؟ پاکستان زندہ باد، یہاں کیا چلے گا یہ نظام مصطفیٰ۔ Hopelessly outnumbered, most of the 1,40,000 Hindus in the valley of a population of more than 30 lakh Muslims panicked and fled. More than 90,000 of them sought refuge in Jammu, Udhampur, Nagrota and Kathua. Another 6,000 moved to Delhi. More than 2,006 reached Amritsar and other parts of Punjab. Yet another couple of thousand scattered in various other directions. The government has so far made only marginal arrangements for their rations. A large majority of them have not found accommodation in the limited number of camps set up by the government. مجھے پہلے بھی تھریٹنگ آ رہی۔ اب آپ واپس جائیں گے کبھی؟ نہیں، میں نہیں جا سکتا۔ تو کیا کریں گے آگے؟ کیونکہ یہاں اگر وہاں سے وہ آفیسر ہی ہے، اس سے بہتر ہے یہاں گلی کوچوں میں بھیک مانگنا اور اپنے عیال کو پالنا، آزادی سے رہنا، بغیر کسی تھریٹ کے یہاں پر اپنے بچوں کے ساتھ رہنا۔ سارا پریوار آ گیا؟ کوئی وہاں نہیں بچا؟ نہیں مہاراج، نہیں، ادھر کوئی نہیں۔ کیوں چلے آئے آپ لوگ؟ جب وہاں پر ایسے سب لوگ آ گئے تو ہم بھی آ گئے، کیا کہیں گے ادھر۔ The migrants have had to leave behind everything. Their bank accounts and valuables kept in lockers are practically frozen. There are hectic distress sales of ornaments by the women in order to subsist. In Jammu, land prices and house rents have shot up all of a sudden. جب ہم اپنا سامان لے کر آنے لگے تو وہ بولتے ہیں ادھر کی کمائی ہے ادھر ہی رہے گی، تم خالی آ جاؤ۔ ہم خالی 3 کپڑے میں آئے واپس۔ مطلب پراپرٹی سیل نہیں کر پا رہے ہیں لوگ؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں ایسا کیا؟ انہوں نے وہ کیا ہے ایسا پروگرام کہ ہم کسی ہندو کی پراپرٹی نہیں خریدیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ کہ مطلب مفت میں ملے گی۔ People who are doing well now find themselves looking for employment.
We met a school teacher from Shopian who has started learning how to sew in order to earn a living. अगर हमें कहीं सिलाई का काम मिल जाए तो हम कर लेंगे, कहीं कढ़ाई या सिलाई या टाइप शर्ट हैंड तो आता नहीं, टाइप तो आता है, तो मैं वो अगर किसी जगह हमें वो जॉब मिल जाए तो मैं कर लूँगी। अब पढ़ाई तो आपकी रुक गई होगी। हाँ। अब क्या होगा? अब पता नहीं आगे क्या करेंगे। अब क्या कहते हैं पिताजी? पिताजी तो कहते हैं अब ऐसे ही बैठना है। Kashmiris in the valley have now begun to feel the economic pinch. In contrast with the prolonged bunds witnessed earlier, there is now an urge to open shops even in the brief periods of relaxation of curfew. हम देखेंगे कश्मीर को हम छोड़ेंगे नहीं। क्यों छोड़ेंगे कश्मीर को? वो हमारा खून है, हमारी मातृभूमि है। क्यों छोड़ेंगे? जो वहाँ पर पाकिस्तान मांगे हम उसको उठा के पाकिस्तान में फेंक देंगे, मगर पाकिस्तान वहाँ पर बनने नहीं देंगे। The common crime of all the 1 lakh Hindu migrants from the Kashmir valley is that they are Indians, that they are not part of the revolt by a large mass of the Muslim population of Kashmir who are crying for secession. वहाँ के ऐसे से है कि जो भी भारत का नाम ले लेगा उसके लिए वहाँ गोली है। हिंदू को बुरी नज़र से ज़रा देख रहे हैं, सिख को भी देखते हैं मगर कम। वहाँ पे डिसाइड कि जिस घर में हिंदुओं को जो भी टेनेंट्स रखेगा वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। तो क्या नाम दे सेड कि व्हेन माय पेरेंट्स वेंट दे सेड कि आप क्या यहाँ करने आ गए हो, खुद भी मरोगे हमें भी मरवाओगे। हिंदू जो भी है वो हिंदुस्तानी है, वो कैसे बर्दाश्त करेगा कि भाई पाकिस्तान है या आज़ादी है। अगर आज़ादी वहाँ हो भी जाए तो वो सारे हिंदुओं को क्रैश करेंगे, जैसे पाकिस्तान में वहाँ हिंदुओं का नामो निशान ही नहीं है। बिल्कुल, हिंदू को वो अपने जान से दुश्मन समझते हैं। ये तो एक प्रोपेगेंडा है कि हम आपको कुछ नहीं करेंगे, वो है, लेकिन दरअसल जो है इन द लॉन्ग रन जो है वो या तो उनको कन्वर्शन करेंगे या तो उनको मार डालेंगे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि कश्मीरी का खून इतना गंदा है, वो किसी कश्मीरी पंडित को जबरदस्ती करेंगे, ये हो ही नहीं सकता। Ironically, the Hindus did not want to leave but left. The nation did not want the exodus to happen but couldn't prevent it. And even the Muslim fundamentalists tried to stop the Hindus from vacating the valley but couldn't succeed. They wanted the Hindus to stay back because they feared the administration had tipped off the Hindus to sneak out so that a massive crackdown became possible. मैं तो जा रहा हूँ सड़क पर, कोई आएगा इतना सा बच्चा बोलता है, गाली बहन की गाली देता है, माँ की गाली देता है, उसको क्या कहेंगे? कहने के लिए उसको कोई यहाँ से रिटर्न तो आंसर नहीं दे सकते। Although there was widespread demoralization of the Hindu migrants, there were sparks of aggressive feelings too. हमसे कोई टक्कर लेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, उससे ऐसा बदला लेंगे। क्या करेंगे? बदला लेंगे क्या? उससे बदला लेंगे जैसे आज उन्हें हमको किया है, हम उनको परसों हिंदुस्तान से ही भगा देंगे। उन्होंने हमें सिर्फ कश्मीर से भगाया, हम उन्हें सारे पूरे जहां से खत्म कर देंगे। It is true that Kashmiri Pandit girls have been special targets of verbal harassment in the valley, although stories of their frequent molestation are highly exaggerated. मुसलमानों का हिंदू लड़कियों की तरफ कैसा सलूक था? अच्छे सलूक। कोई बुरा सलूक नहीं किया? नहीं। कोई बात उन्होंने कही हो जो बुरी लगी हो? नहीं। कुछ बुजुर्ग ये कहते हैं कि लड़कियों के साथ बुरा सलूक करते हैं और ये कहते हैं कि हम लड़कियों को रख लेंगे यहाँ पे और पंडित लोग चले जाओ, लड़कियाँ छोड़ जाओ, अपनी हम पाकिस्तान बनाएंगे। नहीं। ऐसा नहीं है? नहीं। ये लोग झूठ बोल रहे हैं? हाँ। अभी तक ऐसा कोई बुरा सलूक नहीं हुआ, तो यानी वो लोग झूठ बोल रहे हैं? नहीं, कोई बात सच होगी, कोई बात झूठ होगी। There are reports that mullahs from other parts of the country have gone and taken positions in mosques in the valley. Islamic fundamentalism has registered a higher pitch. We went to Anantnag, which had witnessed organized communal riots in 1986, in which several places of worship were destroyed. A large number of Hindus had migrated from here then. Most of them have fled now. We talked to a Hindu surrounded by his Muslim neighbors. अगर खाली फ्रीडम होता, भाईचारा होता तो तब तो हम कहते कि ठीक है, लेकिन थोड़ा हम उससे डरते हैं कहीं अगर इस्लामिक रूल हो जाए तो हमें रिलीजियस फ्रीडम मिल जाएगी नहीं। आप भी भागेंगे क्या? अगर ऐसा हो गया कि माहौल ख़राब ज़्यादा हो गया तो नेचुरली हमको भागना पड़ेगा। तो ऐसा आप कब मानेंगे कि माहौल ख़राब हो गया? वैसे माहौल बहुत ख़राब हो चुका है, यहाँ पे 98% भाग गए हिंदू। It was in Shopian, a small town where 2 days after the release of Rubia Sayyed, a mob affected by mass hysteria had burned down a place of worship, attacked the Hindus and destroyed their properties. मंदिर को क्यों जलाया ये भी मैं आपको बताऊं, ये एक कोइंसिडेंस है कि मंदिर की इमारत में ही इंटेलिजेंस ब्यूरो के आदमी रहते थे,
तो एक्चुअली निशाना उनका वो था, वही था। तो जो आग कहीं पे लगती है, जो कुछ भी आसपास हो, वो सब लपेट में आ ही जाता है। This time in Shopian, the news track team was surrounded twice by this mob, militant and ready to kill. Their suspicion was that we were members of the Shiv Sena and had gone there to spy. Only after a half-an-hour detention, interrogation and a thorough search were we allowed to proceed. We met a Kashmiri Pandit, one of the very few who had stayed back. Why did he not flee? ऐसा क्यों है? वो अगर उस वो पूरी वो जो है 100%, हाँ हमको भी वो 10% या 12% वो डर भी है, लेकिन फिर हमारा वो जो है, मेरा फादर ये सोचता है कि हमने 47 में भी देखा है या बाकी चीज़ देखे हैं, जब अगर मार रहा है क्या पता है इधर भी अगर हम भगवान ने लिखा है तो हम यहाँ पर भी मार सकते हैं, अगर वहाँ लिखा होगा तो वहाँ पर, लेकिन मारना तो एक बार है. While the Indian government is gradually trying to get a grip on the Kashmir problem, Pakistan is trying its best to queer the pitch as much as possible. Addressing a massive public meeting in Muzaffarabad recently, Bhutto boasted of the passionate reception she was accorded by Kashmiris in Pakistan-occupied Kashmir. हिंदुस्तान का वज़ीर-ए-आज़म अगर मकबूजा कश्मीर जाए तो वहाँ के अवाम उनके लिए बाहर निकलेंगे? बिल्कुल नहीं, सवाल पैदा नहीं हो सकता है कि उनके लिए निकलेंगे. मैं चैलेंज देती हूँ कि अगर वो समझते हैं कि अवाम प्लेबसाइट नहीं चाहते तो फिर जा करके देख ले, वो जगमोहन का जगमोहो हदन हो जाएगा. Benazir Bhutto, as you know, has been training her guns against me personally. She had been shouting from the housetops and get out Jagmohan, somehow or the other. This was precisely because the game plan which she had worked out, it fizzled, and these forces understood that I was the main stumbling block in their plan. Acutely aware of India's overwhelming military superiority over Pakistan, Bhutto has missed no opportunity to add fuel to the fire. अगर वियतनाम के अंदर एक छोटा सा मुल्क बड़े सुपर पावर के साथ मुकाबला कर सकता था, और अगर चाइना के अंदर लॉन्ग मार्च के बाद चाइना के अवाम आज़ादी हासिल कर सकते थे, अगर अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के अवाम एक सुपर पावर का मुकाबला कर सकते हैं, तो आप कोई सुपर वुपर पावर नहीं है कि कश्मीर के अवाम के साथ मुकाबला करके अपना हक लाने. Bhutto's haranguing tirades and wild promises on Pakistan television, also seen on the Indian side, have done enough to whip up mass hysteria. कश्मीर के बहादुर अवाम मौत से नहीं डरते हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं. कश्मीरियों के रगों में मुजाहिद और गाजियों का खून है. कश्मीर के अवाम के रगों में मुजाहिदों का खून है, क्योंकि कश्मीर के अवाम वारिस हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं. वो वारिस हैं तो हजरत अली और हजरत उमर के वारिस हैं, और कश्मीर के बहादुर खवातीन वारिस हैं तो बीबी खदीजा, बीबी आयशा और बीबी फातिमा के वारिस हैं. वो लड़ना भी जानते हैं और वो जीना भी जानते हैं, और अगर वो जिएंगे तो वो इज्जत के साथ जिएंगे, अपने हक को लेकर जिएंगे. As the death toll rose in the province of Sindh, Bhutto exposed her own weakness by calling the Pakistani army to crush the agitation in Sindh. पाकिस्तान का रोल हमारे लिए ठीक नहीं है. कैसे? वो हमेशा चाहता कश्मीरी को जलील करना, वो नहीं चाहता कश्मीरियों को इज्जत मिलना चाहिए. नहीं, वो अपने घर नहीं संभालते. देखो कितने 100 आदमी मर रहे हैं वहाँ कोई हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं है, वहाँ आपस मुसलमान को मारते हैं. उससे अच्छा हम हिंदुस्तान में बैठे हैं, हमें इज्जत है, भाईचारा है, सब कुछ है. आवाम की दिल की धड़कन सुननी चाहिए, नहीं तो आप देखेंगे कि कश्मीर के अवाम बहादुरी के साथ, दिलेरी के साथ अपनी आज़ादी खुद लेंगे. हर शहर से एक ही आवाज बुलंद होगी, आज़ादी. हर ही गांव से एक ही आवाज बुलंद होगी, आज़ादी. हर ही मस्जिद से एक ही आवाज बुलंद होगी, आज़ादी. हर स्कूल से एक ही आवाज बुलंद
What is at stake in Kashmir now is not just the fate of 30 lakh people of the valley, but the future of secularism in India. What we have to guard against now is the possibility of an impending danger. That Kashmir that could once be offered as an example of communal harmony could now become responsible for the breakdown of the secular fabric of the country. There should be no hesitation in taking the strongest possible measures to prevent that from happening. गाइस, जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे भाई, वीडियो तो काफ़ी कुछ सच भी था, कुछ झूठ भी था, लेकिन ये जो बात है ना मुस्लिम पर करते कि वो हरासमेंट करते हैं, मतलब कि फोर्स करते हैं कि आप मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाओ, भाई ऐसी कोई बात नहीं, ना कोई ऐसी बात करता है कि फोर्स से किसी का मतलब कि मज़हब तब्दील करना, क्योंकि मज़हब तो एक ऐसी आज़ादी है, बंदा खुद ही चूज़ कर सकता है कि किस मज़हब को कैसा मज़हब चॉइस करना है, कैसा नहीं करना। लेकिन ऐसे बातें यार, आपने लड़की से भी पूछा, उसने बोला ये सब गलत अफवाहें हैं और अफवाहें हैं। अगर भाई ऐसा कश्मीर है ना, अगर ऐसे हालात होते हैं तो भाई हमें भी ऐसा कश्मीर नहीं चाहिए, और ना ऐसे जो इंसानियत से बढ़कर काम है उधर वो हों, वो ऐसा कश्मीर हमें नहीं चाहिए। लोगों पर जुल्म हो ऐसा तो नहीं भाई, अगर कोई हिंदू है तो उस पर शरेआम भाई जुल्म करना और बोला कि ये पाकिस्तान ने किया है, ये ऐसा सब ने किया है, और ना ही पाकिस्तान में इसमें मुलव्वस होता है। भाई देखो, जुल्म तो जुल्म होता है, पाकिस्तान करे या हिंदुस्तान करे, लेकिन जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। और कश्मीर ना तो भाई हम नहीं चाहते कि हमें कश्मीर चाहिए जिससे भाई इतनी जानें भी जाएं, ऐसे हालात भी ख़राब हों और फ़ायदा भी कुछ भी ना हो। बिल्कुल भाई, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि आपको पता है कि जो कश्मीर पाकिस्तान के पास आ गया वो पाकिस्तान की तरफ, जो कश्मीर इंडिया की तरफ आ गया ना वो इंडिया ना भाई, यहाँ पर पाकिस्तान देगा कश्मीर, ना इंडिया देगा। अगर मतलब कि वो कोशिश करते हैं या पाकिस्तान कोशिश करता है तो फिर ज़ाहिर सी बात है जंग, क्योंकि हमारा सबसे जो बड़ा मसला है, जो मेन मसला है, वो तो हमारा सिर्फ कश्मीर है, जिसकी वजह से इस लेवल पर, इस जगह पर हम आकर खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से इतनी बड़ी लड़ाइयाँ, हम में दुश्मनी है, सब कुछ क्या कि सिर्फ कश्मीर की वजह से, और इसके पीछे कोई मुद्दा भी नहीं है भाई। तो इसी वजह से वो सवाल जवाब पूछ रहे थे और उन कश्मीरियों से सवाल जवाब कर रहे थे जो कश्मीरी पंडित थे, वहाँ से निकले थे। ये वही वीडियो है, और ये दी कश्मीर फाइल आने से ये उन्होंने इस वजह से भाई ने वीडियो बनाई, और उन्होंने एक अच्छी वीडियो बनाई है, उनके सवाल जवाब डाले हैं, उनको दिखाया है वो क्या चाहते हैं क्या नहीं यार भाई। जो भी बात है ना, हर बात पाकिस्तान पर ना मतलब फेंकी करो कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, वो दहशतगर्दी फैला रहे हैं। कुछ अपने आप में भी झांक कर देखो कि बस भाई पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना है कि इधर अंदर खाते बहुत से आपके ही लोग उधर से मतलब कि हरासमेंट भी कर रहे हैं, जुल्म भी कर रहे हैं, और उनको तो पता है भाई बदनाम तो पाकिस्तान ने होना है, इल्ज़ाम उन पर लगना है। ऐसे दो चार कश्मीरी मर भी जाते हैं बेकसूर, तो इल्ज़ाम तो पाकिस्तान पर सबसे पहले आता है, और कश्मीरियों मतलब कि पाकिस्तान दहशतगर्दी फैला रहा है, इल्ज़ाम सबसे पहले। लेकिन सबसे पहले आप भी कुछ अपने आप पर भी झांक कर देखें। इधर भी भाई, इधर भी लोग हैं जो फसाद डालते हैं, उधर तो बहुत है ना जो फसाद डालते हैं और बदनाम फिर पाकिस्तान को कर देते हैं। उन पर भी उन पर भी रिपोर्टें डालो ना, उन पर भी इन्विटेशन करो उनकी भी। बिल्कुल भाई, इन्वेस्टिगेशन भाई आप बोल रहे हैं थोड़ा बहुत लफ्ज़ तो इंग्लिश बोली ना कर, तो सीधा उर्दू। हाँ आप सीधा उर्दू में। नहीं मैं भाई बात कुछ और करना चाहता था, लेकिन मुंह से कुछ और निकल गया। अच्छा, असल में पिछले जो है ना वो एक वीक से 10 दिन से जो है ना वो था कश्मीर फाइल, हमने मूवी जो है ना उसके ऊपर जो है ना वो वीडियो भी बनाई है, और उसने एक जो है ना वो एक हिस्ट्री को जो है ना उसने ओपन किया है कि जो हिस्ट्री जो जिस तरह जो है ना वो पंडित के साथ वहाँ पे हुआ था, कश्मीरी पंडितों के साथ, और उसमें बहुत सारे कश्मीरी भी आए हैं एज़ पर जिस तरह आप वीडियो देखी है। तो एक दिल में बहुत चाहत थी कि हम वो वीडियो जो है ना वो मूवी ज़रूर देखें, लेकिन अभी तक HD में मिल नहीं रही थी। तो ये आज एक किसी भाई ने जो है ना वो रिकमेंड की है, रहमान भाई को, तो उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इसमें बेसिकली जो है ना वो एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि भाई हुआ क्या था और किस तरह जो है ना उनको निकाला गया, और क्या क्या उनके साथ वो किस तरह रह रहे हैं, क्या क्या चीज़ें जो है ना कि क्या क्या उनको छोड़ना पड़ा, क्या क्या उनके साथ जो है ना वो बीती हैं। क्योंकि जहाँ पे आपकी पैदाइश हुई है, जहाँ आप पैदा हुए हैं,
वो जगह छोड़नी सबसे जो है ना वो मुश्किल काम होता है। ज़िंदगी में अगर कोई मुश्किल काम है ना तो आप जहाँ पे पैदा हुए ना वो जगह छोड़ के किसी और जगह पे जाके एडजस्ट होना होता है। तो वो कौन सा घरों में रहे, वो कोई जिस तरह उन्होंने वो बनाया दिखा रहे हैं कि वो खेमों में रह रहे हैं, वो किस तरह जो है ना अभी तक भी उनका जो है ना वो यही सूरत हाल है। तो पता नहीं कितनों ने अपने घर बार छोड़े, कितनों की ज़िंदगियाँ गई। ये नहीं कि वहाँ पे उनकी डेथ नहीं, उनको पकड़ कर बेचारों को मारा भी गया। उनसे ये सही बात कर रहे हैं, ज़बरदस्ती जो है ना इस्लाम कबूल करवाया गया। अब वो पता नहीं कौन से अनासर थे, कौन जो है ना इतने ज़ालिम लोग थे। हम तो भाई उनमें उनको नहीं जो है ना इस चीज़ में लेके आते कि वो एक मुसलमान थे। मुसलमान जो रियल मुसलमान होता है वो इतना ज़ालिम नहीं होता। तो अब देखो वो कौन थे, लेकिन ये कि ये वीडियो देख के जो है ना हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर जो है ना वो अफसोस हुआ है, दुख हुआ है यार, कि किस तरह जो है ना उन लोगों ने बेचारों ने एक कुर्बानियाँ दी हैं अपने घरों की, अपने कारोबार की, अपने देखो छोटी छोटी चीज़ें लेके जो है ना वो वहाँ से बेचारे निकले हैं। और अभी तक जो है ना उनको वो वहाँ नहीं जा सकते, या कोई अभी तो खैर कुछ जो है ना जिस तरह गवर्नमेंट अब शायद एज़ पर मूवी जो है ना वो उनके के लिए कोई अच्छे इकदाम करेगी, जिस तरह ये ओपनली हुई। ये देखो ये कुदरत की तरफ से होता है कि बहुत से लोग जो इस तरह उस वक्त जो मजलूम थे अभी भी उस तरह रह रहे थे, तो एक जो है ना वो उनको एक आसरा मिला है और उनकी लेवल पे जाके जो है ना उनकी ये बात सुनेंगे और उसके ऊपर बहुत सारा जो है ना वो अब कोई उसका हल निकालेंगे। तो उस लिहाज से ये बहुत इंफॉर्मेटिव थी बिल्कुल। और इसमें हर चीज़ जो है ना वो क्लियर होगी। जो एक ज़हन में क्वेश्चन बन रहे थे कि यार क्या सीन है, क्या उन बेचारों के साथ बीती होगी। ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन किए हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, कुछ बुरे थे। जो उन्होंने पॉजिटिव जवाब दिए, नेगेटिव तो खैर नहीं दिया। वो लड़की से जिस तरह उन्होंने पूछा कि वहाँ पे आपके साथ कुछ ज़बरदस्ती है, उसने कहा कि नहीं हमारे साथ इस तरह का सीन नहीं होता था, अल्लाह करे ना हुआ होगा। और के दूसरी लड़की ने कहा कि हाँ गलत भी हुआ है, सही भी हुआ है, लेकिन उसको सवाल की समझ नहीं आई थी। जो क्वेश्चन उसने पूछा था ना थोड़ा मिक्स सा लग रहा था कि लेकिन जो भी है बहरहाल भाई एक बहुत ये जो है ना वो ना बयान करने वाले वो वाक़यात हैं जिस तरह हमने देखे हैं यार। अब तो जो है ना वो वाकई एक ज़हन खुल गया इस चीज़ को देख के कि वो बेचारों के साथ किस तरह हुआ था और क्या क्या चीज़ें उन्होंने जो है ना वो बर्दाश्त की। बिल्कुल भाई। तो मज़ीद अब और अगर इंफॉर्मेशन ऐसी वीडियो आपके पास हैं तो ज़रूर हमें दीजिएगा, हम देखेंगे। तो रिएक्ट तो खैर कर दिया और उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।